एंड आई होप उधर साइड में भी करना होगा, कुकी के साइड में भी करना होगा मेरे ख्याल से. बट व्हाट हैपन इज ओवर हियर एट दिस टाइम, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के इलाका में जो प्रॉब्लम हो रहा है, कहां पे हो रहा है? सिर्फ मणिपुर में नहीं हो रहा है ये कहानी. ये क्राइसिस जो है मणिपुर में, सिर्फ मणिपुर में नहीं हो रहा है. Why we are condemning his statement? The former DG, the Director General of the Assam Rifle, has already given a statement that there were no evidence or clue. But we have the evidence and proof that. And there was a video footage that Kuki militants launching that kinds of rockets and the missiles and also the drone bombing. Hi viewers, I am Sultan Bharti and you are looking Secular Bharat News. Meitei and Kukis, major community of Manipur, both wants peace in Manipur. Government claims that it is trying their best to restore the peace in Manipur, but even peace is so far. Today, the big supporter of Meitei community were available at the Jantar Mantar. I will request you to see the full video. They believe that there is a suspicion that in the public that whether they are firing by the Kuki or by the security forces. So this kind of suspicion will actually give you a very big problem for the country again. That is why the youth of Manipur in Manipur University, the students are actually coming out on the street and saying that what they said. Now, they said that if you cannot protect Manipur or if you cannot maintain, then go away all the central security forces, we will protect ourselves. आप सब ने इतनी ताकत, इतनी एकजुटता, इतनी एकता दिखाई है कि पार्टियों के तो होश उड़ गए. Fighting with other community, but in Manipur, the two communities are fighting. They don't care because this is also a racist government. Because they don't care whether the Kuki or Meitei are killed. Because our nose are different from them, our eyes are different. If the Kuki 200 cookies are killed or 100 Meiteis are killed, it doesn't matter. It also said it doesn't matter. That is why in one of the interview we asked to the one interview journalist that if this kind of violence is happened in some part of India, whether UP or Maharashtra or Rajasthan or Punjab, will they allow to do? Will the army will be a silent spectator the way they are doing in Manipur? Tell me, they will never allow such kind of violence in the way it has been allowed to happen in Manipur. You see a huge crowd here sitting. What is the dispute? What is the demand? What is the problem they're feeling? Yes, ma'am. Tell me, what would you like to say about the recent attack through drone? Is it true? What will you say? Yeah, it is obvious and it is very true that. But I would like to get you. Security officers are telling that we have no any clue to attack by drone. What No. That's why we are condemning his statement. The former DG, the Director General of the Assam Rifle, has already given a statement that there were no evidence or clue. But we have the evidence and proof that. And there was a video footage that Kuki militants launching that kinds of rockets and the missiles and also the drone bombing. That they have already circulated the video footage in the social media. We have the proof. And how can he said that? How he give a wrong statement? And this is very completely wrong. What may be the reason that they are not giving the true statement to the press? I think they have something hidden agenda between the central government and the Kuki militants, and that's why they are trying to hiding the truth behind the incidents that. And we have lost our lives now. Two people died during that attacks. Yes, ma'am. What would you like to say about 15th month old problem that is not seeing nearby that it is going to be solved?
I would like to say that I would like to say and to our Prime Minister to look after the thing which is happening. It's been more than a year. It's been 1 month 1 year 6 months, right? So people are suffering. People are suffering. Both the side, both the two communities are suffering a lot, and the Prime Minister didn't give even a single word on what's happening at Manipur. So please. Maitis are in majority. Even they are suffering. What Yeah. You haven't the representation in the. We are suffering a lot. We are suffering a lot. And see, like some days back, the Kuki militants have been bombing us, and 2 civilians have died. That is an act of war. What would you like to say about the media, about the press, for the countrymen? I would like to say to media that please, Prime Minister, speak up about Manipur. Look after the state. We want peace as soon as possible. Thank you very So number one core issue then is the hygiene. Masidagi thoda ngakane ba koi problems. Madugi ngasagi aggressive weba northern tribe ko manati haibado aduga khusamna na aina su yam toina haijaba porama 2016 where the area ba. Kaido bogi koina mapande mi sangal loidoi na. अगर लोन चुमाने हम चुमाने है तो आइना मधुदने बा अदु यूज तौरगन आइना करन थापर दा आइना नंग बेंगोली पंजाबी लोई माने न सिदा सिटीजन हो याब्रा आइना मोदा हंगी दोइला बांग्लादेश बेंगोली नहीं पाकिस्तान देशु पंजाबी लई पंजाब लई नहीं लाहौर जे पंजाब की कैपिटल ली तमिल लई नहीं के नो श्रीलंका दा लोन थांजल के हाई ब्रा आइना मोदा हंगी बने बैना अदो कदा दे हंगै नो दा मी लाइन ऑफ आर्गुमेंट उड़ा हाइदा बने बस सिगी अखोगी डिविजिव पॉलिटिक्स ये सही बात है। मणिपुर जल रहे हैं लास्ट 16 मंथ से 16 महीने से, लेकिन उसमें हमारा पास एविडेंस भी थे और सस्पिशन भी थे क्योंकि किसी और का हाथ है। तो अभी तो ये खुल के आ रहे, हम नहीं बोल रहे, आप मैन इन इंडिया बोल रहे, मीडिया बोल रहे, सब बोल रहे हैं कि पड़ोसी देशों में से कोई हाँ ये बर्मी से आया हुआ इंट्रूडर्स, they are, of course they are illegal immigrants, intruders, yes. तो वो लोग आके अभी हम मणिपुर को हमला कर रहे हैं, तो हमारा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या हमारा प्राइम मिनिस्टर को, आइए, हाँ जी आइए, हमको बचाइए। मैं आपके पास फिर आता हूँ जी। आपका नाम थोड़ा सा आगे आइए। मेरा नाम है सुमनथेम नर्मदा देवी जी, डीएमसीसी का कन्वेनर हूँ, वुमेन्स विंग का। क्या कहेंगे, तकलीफ तो बहुत बड़ी है, लगातार डिस्टरबेंस अगर घर में होती है तो उसका असर मोहल्ले पर पड़ता है, किसी प्रांत में होती है तो उसका असर देश पर पड़ता है। तो ऐसा क्या है कि इस समस्या का हल ही नहीं हो? ऐसा है कि ये साजिश है, साजिश है, तो नहीं बोलना चाहती हूँ, फिर भी साजिश है। साजिश से तो शुरू तो क्या, खत्म नहीं हो पा रहा है। एक तकलीफ सबसे बड़ी ये है, एक चीज बताइएगा निर्मला जी, अभी कुकी वालों का यहाँ पर प्रदर्शन धरना होता है, मैंने 3-4 उनके भी देखे, 3-4 आप लोगों के भी करीब 2 साल से मैं आते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दोनों संगठन के लोग बैठ के आपस में हल कर लें? जब सरकार कुछ कर ही नहीं रही है तो आप लोग मिल क्यों नहीं जाते? किस चीज पर टकराव? मणिपुरी मैतेई लोग तो मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बैठ के बात करते हैं, वार करके खत्म नहीं होता है, ठीक है, बात करके खत्म होता है। हम लोग बात करने के लिए कोशिश करता है, वो लोग नहीं मान रहे। तो ये साफ है कि इसके करने वाले कौन हैं? निश्चित रूप से देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री। और अगर आप देखें, मैंने वीडियो सुना, मैंने हिजम सर को बताया कि आपने क्या वीडियो सुना है, दबावर पे जो एक बड़ी जबरदस्त वीडियो चल रही है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि बीरेन सिंह की जो चीफ मिनिस्टर है उसकी आवाज है, और जिसमें वो बता रहे हैं, कह रहे मुझसे गृह मंत्री ने पूछा यार तुम बम बड़ी तेजी से मारते हो, सुना होगा आपने, कह रहे नहीं आप धीरे से मारा करो। वो काफी लंबी वीडियो है, आप सबने सुनी। तो इतनी सारे सबूत आपके सामने हैं,
सब कुछ अपनी आंखों के सामने हो रहा है। और अभी डॉक्टर रोजेस ने जो बताया कि किससे लड़ रहे हैं, क्योंकि मिलिटेंट बर्मी आर्मी से लड़ रहे हैं, बांग्लादेश की आर्मी से लड़ रहे हैं, और आप तमाशा देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को तो डूब के मर जाना चाहिए। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात होगी कि आपके ही सामने, आपके ही देश में हस्तक्षेप हो रहा है, बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है, और आप चुप बैठे हैं। और अगर मिलिटेंट कोई भी हो, इतनी आजादी के साथ किसी भी तरह का ऑपरेशन करते हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है सरकार की ताकत है उसके पीछे होती है। बिना सरकारी ताकत के, बिना सरकारी सपोर्ट के कोई भी मिलिटेंट कुछ नहीं कर सकता है। आइडेंटिटी की प्रोजेक्ट मणिपुर प्रोजेक्ट मयाम मणिपुर का पोचे थुगाई तवे दिस इज द कोर इश्यू ऑफ मणिपुर 2001 you burned the assembly is related to that same problem hanok thangrei banangi UT demand tawriba separate minister ta ani se manadabro chamana natro so amak to bagi wakhalon sabang am da politics ma sagatpam am da bagi problem achawa ma le bisa this is the core issue of Manipur ड्रोन द्वारा अटैक किया गया है, बम्बार्डमेंट किया गया है। मेरे देश का आवाम और देश के नागरिक को मेरा अभिवादन। देखिए, अगर सरकार का नरेंद्र मोदी हमारा जो नॉन बायोलॉजिकल जो प्रधानमंत्री है, अगर उनका नियत साफ होता, ये दंगा फसाद जो है 1 महीने के अंदर इसको निपटा सकता है। देखिए, भारत के इतिहास में पहले बार ड्रोन के अटैक सिविलियन के ऊपर और मिसाइल अटैक, अब पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ हो या असम राइफल्स हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी, आर्मी प्लस मणिपुर के स्टेट फोर्सेस, जहां पर लगभग 70,000 इंडियन फोर्सेस के सामने अगर ड्रोन के अटैक हो, ये ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर मिस्टर प्रकाश तो कह रहे हैं ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं। देखिए, मैं थोड़ा सा खंडन करता हूँ। मुझे आपत्ति है थोड़ा सा, वो आसाम राइफल के डीजी रहे हैं मिस्टर पीसी नायर, मैं उसके जो स्टेटमेंट है उसको मैं खंडन करता हूँ। दूसरा, आपको याद होगा बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो डीजी रहा पीके मिश्रा जी, उनका स्टेटमेंट है असम राइफल की और उग्रवादी संगठन जो क्या नाम है कुकीज उग्रवादी जो है उनके साथ अच्छा संबंध है, ये नकार नहीं सकता। उन्होंने बिल्कुल बाकायदा प्रेस में बोला है। तो जो पिछले जो कुछ दिनों से अगर ड्रोन के अटैक हो रहा है, तो इतने 70,000 सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे हैं, या उनकी सहमति है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सीधा हम तो सिक्योरिटी फोर्स तो कुछ भी नहीं, हमारा सीधा सवाल है प्रधानमंत्री तुम्हारे पास ये जवाब नहीं है इस देश को संभालने के लिए, क्योंकि आप 24 घंटे इलेक्शन के मूड में रहते हैं। आप जम्मू कश्मीर जा सकते हो, आप झारखंड जा सकते हो, लेकिन क्या मणिपुर के लोग इतना मूर्ख है? क्या आपकी जो चाल है क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या हमें सब कुछ समझता, हम जानते हैं ये शांति व्यवस्था वहाँ इतनी दूर क्यों है? दोनों समुदाय भी अलग अलग बयानों में प्रेस में ये कहते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, हम अगर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड करते हैं तो उसके पीछे हालात ऐसे बन गए। देखिए, मैतेई समुदाय चाहता है को एग्जिस्टेंस और को हैसिव प्रोग्रेस। अगर कोई भी अगर आपकी अभिन्न अंग से अगर अलग होना चाहता है तो कौन मंजूर होगा? आप भारत का जो एक अभिन्न अंग है उसमें से अगर अलग स्टेट मांगता है तो कोई ये जो अनडेमोक्रेटिक है, ये संविधान के हिसाब से सही नहीं है। अगर तेलंगाना अलग हुआ है या अगर झारखंड अलग हुआ है, अगर उत्तराखंड अलग हुआ है, वो डेमोक्रेटिक राइट है, दैट इज अ पॉलिटिकल फाइट, वी एग्री ऑन दैट। बट बाय ड्रॉपिंग अ ड्रोन एंड बॉम्ब सेल दैट क्या नाम है जो मिसाइल एक सिविलियन पे, दिस इज वेरी अनडेमोक्रेटिक, दिस इज एक्टिविटीज ऑफ द टेररिस्ट। It is very sensitive matter. Yeah. Mr. Amit Shah and Mr. Rajnath Singh and this Mr. दो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री सीधा उनके जिम्मेदार है। तो सरकार आखिर कोशिश करने से क्यों कतरा रही है? कौन सा पीएम या कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा चाहेगा कि देश में अव्यवस्था बनी रहे? देखिए, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के इसका क्रोनोलॉजी ऑफ द गवर्नेंस में आप देखिए, दंगा फसाद उनकी सबसे पहला प्राथमिकता है। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक सिर्फ दंगा ही दंगा हुआ है। वो उनकी जो क्रोनोलॉजी में दंगा फसाद एकदम उनका गवर्नेंस ऑफ क्रोनोलॉजी में बिल्कुल एक अभिन्न अंग है उनका। ये जो है प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा सुधार की जरूरत है।
देश के नागरिक, सिर्फ मणिपुर के नागरिक नहीं, देश का नागरिक पूछ रहा है मणिपुर में शांति क्यों नहीं ला रहा है। मणिपुर आपका भी जगह है, मणिपुर मैतेई का भी है, मणिपुर गोरखा का भी है, मणिपुर नेपालियों का भी है, मणिपुर बंगालियों का भी है, मणिपुर पंजाबियों का भी है। ये देखिए आपका सामने जो है वो सरदार जो है मणिपुर बोर्न सरदार है। झारखंड के बहुत लोग हैं, आपको जान के ताजुब होगा मणिपुर में तमिल बहुत ज्यादा संख्या में है। हाँ, बिहारी लोग है, उत्तर प्रदेश का है। सिर्फ दिक्कत है जो कुकी जो है, कुकी समुदाय के, क्योंकि एक उनके एक पीछे है, ये है ड्रग जो पॉपी कल्टीवेशन है, उनसे पैसे कमाई आता है, उस कमाई में उनकी कमर तोड़ दिया है, उसमें घबराहट है और ये सीधा सीधा दिल्ली भी इसमें इन्वॉल्व है। ये है प्रॉब्लम। तो हल क्या है? हल ये है कि भाई आप प्रधानमंत्री सीधा सीधा इसमें हस्तक्षेप चाहिए प्रधानमंत्री का चूंकि एक अच्छी बात नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे किसान संगठन के साथी, अभी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी हरियाणा चुनाव को लेके, उसमें भी शुरू से लेके पहले वक्ता से लेकर आखिरी वक्ता तक जो बोला था, सारी रिकॉर्डिंग इनके पास है। हम साथी वो पास हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।